Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lahore, Lower Mall campus. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children, and this course is from MA Special Education with an area of specialization of hearing impairment, and the course code is SPED 4133, and it is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Cooperative Learning. In previous lecture we have discussed few features of cooperative learning and some benefits, and in today's lecture we will discuss some more benefits and drawbacks and also some characteristics and elements of cooperative learning. So first of all, we will discuss some more benefits of cooperative learning. Cooperative learning increases attendance of students in the classroom, and those schools utilizing this strategy report an increase in student attendance because students feel that they are a valuable and necessary part of their groups. Because of students' motivation is increased through when the teacher uses cooperative learning strategies in the classroom, and as a result the students are interested in the classrooms and schools, and they come to the school to attend the classes and learn new concepts. Cooperative learning strategies increases the attendance and motivation of the students in the classroom. Another benefit of cooperative learning is decreased disruption. This method decreases classroom disruptions due to 2 reasons. This research supports that the use of cooperative learning strategies and cooperative learning method in the classroom by the teacher, it decreases the disruption of the students in the classroom. And there are 2 reasons which we assume that the students are less disruptive in the cooperative learning classroom. First reason might be students act out to get attention. However, the stage is removed in the cooperative environment because it is very difficult to gain the attention of the entire class when students are divided up into smaller groups, and as a result students are more likely to stay on task and are less likely to be disruptive. डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स शोर या डिसरप्टिव बिहेवियर तभी शो करते हैं बिकॉज उनके सबकॉन्शियस में उसकी रीज़न ये होती है कि वो अटेंशन गेन करना चाहते हैं पूरी क्लास की, जिसकी वजह से वो डिसरप्टिव बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं. एंड व्हेन क्लास इज़ वर्किंग इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स and they are divided into the smaller groups, so जब डिसरप्टिव बिहेवियर बच्चा शो करेगा तो उसको पूरी क्लास की अटेंशन मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं और वो अपनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो डिसरप्टिव स्टूडेंट की तरफ कम अटेंटिव होते हैं, उसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं. एज अ रिज़ल्ट वो बच्चा जो है उसका पर्पज़ फुलफ़िल नहीं होता डिसरप्शन का, इस वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिसरप्टिव बिहेवियर्स को लेस शो करता है इन द कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम. सो इस वजह से जो कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम्स होते हैं उसमें डिसरप्टिव बिहेवियर्स बहुत कम होते हैं. एक और रीज़न जो कि हो सकती है डिक्रीज डिसरप्शंस की, दैट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग आल्सो हेल्प्स रिड्यूस क्लासरूम डिसरप्शंस बिकॉज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सोशलाइज ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. Students need peer interaction, and without the integration of interactions among students, the need for social contact emerges in a negative context. So इसमें जो है वो चूँकि when students are working in cooperative learning groups, basically they are socializing with each other. All the students are verbalizing with each other and they are discussing and explaining their ideas and concepts to each other. तो जब इतना ज़्यादा सोशल प्रोसेस एक ग्रुप के अंदर हो रहा होता है
तो उससे बच्चे की जो नीड उसकी होती है, एक नेचुरल नीड होती है कि वो बात करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने वर्बलाइज करना चाहता है अपनी थॉट्स को। तो ये ऑलरेडी हो रहा होता है कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में। सो उसको फिर जो डिसरप्टिव बिहेवियर शो करने का उसकी जो नीड है वो मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्बल बिहेवियर के थ्रू अपनी थिंकिंग्स को शो कर रहा होता है। तो उसकी अटेंशन सारी डिबेट की तरफ हो जाती है, डिस्कशन की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिसरप्शंस डिक्रीज्ड शो करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल प्रोसेस के अंदर होता है। Another benefit of cooperative learning is reduced violence. वायलेंस चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मौजूद होती है क्लासेस के अंदर। बच्चे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, वायलेंट बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं क्लासरूम्स के अंदर, और जो एंड वी कैन रिड्यूस these activities and these violence activities with the use of cooperative learning method in the classroom, because it enforced correctly. कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ मॉडल नॉन वायलेंट रेजोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें जैसे जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं एंड व्हेन दे आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द लर्निंग प्रोसेस, तो वो एक दूसरे से बात करके नॉन वायलेंट तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अगर प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए इन एक्टिविटीज़ को और कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड जो है उसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए क्लासरूम्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ नॉन वायलेंट रेजोल्यूशंस पेश करती हैं प्रॉब्लम्स का। Because group consensus is promoted, blame is eliminated, and honor, friendliness, and quality are promoted. So these are the basic characteristics of the different social behaviors when the students are working in the cooperative learning groups, and because these groups promote consensus and there is no blame, no student is blaming each other, and honor is promoted and friendliness and quality are promoted. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जब ज़ाहिर है टीचर इनकलकेट करेगा बच्चों के अंदर कि आपने एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर में काम करना है, क्वालिटी को प्रमोट करना है और एक दूसरे को ब्लेम नहीं आपने करना, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आपने कंसेंसस के साथ रिजॉल्व करना है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब बच्चों में डेवलप होती हैं तो अल्टीमेटली क्लास में वायलेंस रिड्यूस्ड हो जाता है, बच्चे एक दूसरे को ऑनर करते हैं, फ्रेंड्स बनकर रहते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर। तो इस वजह से क्योंकि ग्रुप वर्किंग जो है वो बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं, और जब वो इंडिविजुअली लेक्चर मेथड या किसी और मेथड के साथ हम उनको पढ़ा रहे होते हैं तो वो लोनली फील कर रहे होते हैं, और इस वजह से वो वायलेंट बिहेवियर्स भी शो करते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जब ग्रुप्स में वो काम करते हैं तो उनको वो लोनलीनेस की फीलिंग्स नहीं होती, और उस वजह से जो है वो फिर अपना वायलेंस एक्टिविटीज़ नहीं करते। Another benefit of cooperative learning is diversity awareness. Cooperative learning also builds diversity awareness among students. It encourages students to use their differences to help each other. As students observe each other's reasoning process, there is more room to understand and appreciate their differences. So little differences के साथ आपकी क्लास में बहुत से बच्चे जो हैं वो मौजूद होते हैं। Each and every student is different from the other one. और जो cooperative learning strategies जब क्लास में हम यूज़ करते हैं और ग्रुप्स में बच्चे काम करते हैं तो उसके थ्रू उसकी वजह से क्लास में डाइवर्सिटी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। बच्चों को एक दूसरे के डिफरेंसेस का पता चलता है, वो एक दूसरे को समझने में उनको हेल्प होती है, एक दूसरे की हैबिट्स का पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो अकोमोडेटिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जा रहा होता है तो वो अपने पीयर्स को अकोमोडेट करने की ग्रुप में कोशिश करते हैं। सो उसकी वजह से बच्चों में डाइवर्सिटी अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है। और इसके अलावा बच्चों को जब एक दूसरे के रीजनिंग प्रोसेसेस का पता चलता है, एबिलिटीज़ का पता चलता है, कैपेबिलिटीज़ वो देखते हैं एक दूसरे की कि कौन किस चीज़ में अच्छा है और किसकी कौन सी स्किल वीक है, तो वो एक दूसरे को जानने के बाद और उसके बाद उनके पास एक रूम डेवलप होता है वेयर दे कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, और एक दूसरे के डिफरेंसेस को दे अप्रिशिएट। Another characteristic of cooperative learning is that it includes students with special needs.
Cooperative methods are flexible and can easily be adapted for students with special needs. Because of the reasons mentioned above, this type of learning environment allows for improved social acceptance of mainstreamed students with learning disabilities. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी और इसके अलावा बाकी भी कोई और डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे अगर क्लास के अंदर मौजूद हों तो उनकी एक्सेप्टेंस, सोशल एक्सेप्टेंस वो इंक्रीज़ होती है इन कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस को वेलकम किया जा रहा होता है इन ग्रुप्स। बच्चे डिफरेंसेस को वेलकम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे होते हैं इन ग्रुप वर्क। सो इसमें जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी अकोमोडेशन काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि उसमें बच्चे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं और सोशल एक्सेप्टेंस काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। तो इस वजह से सोशल एक्सेप्टेंस स्पेशल नीड्स बच्चों की भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से इस मेथड को स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। Another benefit of this cooperative learning method is that it enhances the language learning. Cooperative learning helps students learn language better than the drill and practice of traditional language training. It would appear that peer interaction in natural settings is the ideal use of language that is necessary for successfully acquiring second language skills. So when we are teaching any language to the students and particularly second language skills, तो उसमें cooperative learning strategies they enhance because this involves social learning and interaction between the students, और बहुत ज़्यादा students एक दूसरे के साथ discussion और explanations कर रहे होते हैं concepts की, so they can use their new language in the discussions and explanations, and in this way they can more learn लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल वे, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग में आप देखते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस मींस के जब हम कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और उसमें हम कोई न्यू वोकैबुलरी और उसकी ग्रामर जब लर्न करते हैं तो उसको प्रैक्टिकली जब तक क्लासरूम के अंदर या अपने पीयर्स के साथ स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते तो उतना ज़्यादा जल्दी वो फ्रिक्वेंटली उसको नहीं सीख पाते। तो जहाँ पर चूँकि वो बच्चे स्मॉल ग्रुप्स में बैठे होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने काम करना होता है, और वहाँ पर अगर हम उनको ये बाउंड कर दें कि आपने अपनी सेकंड लैंग्वेज में जो आप लैंग्वेज न्यू सीख रहे हैं उसमें आपने एक दूसरे से बात करनी है, तो बहुत क्विकली स्टूडेंट्स उसको पिक करते हैं और एक दूसरे के साथ जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, थ्रू दैट कन्वर्सेशन दे कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड दे कैन बेटर डेवलप देयर न्यू लैंग्वेज. So cooperative learning plays an important role in the language learning process. Differences in learning abilities are well catered when this class is working in cooperative learning groups. Students who usually struggle in academics are able to learn to prepare for tests, check and correct homework and see alternative solutions to problems. क्योंकि वो बच्चे जो कि काफ़ी वीक होते हैं एकेडमिक्स में, दे लर्न टू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, क्योंकि व्हेन दे आर वर्किंग इन द ग्रुप्स तो एक दूसरे बच्चों के साथ वो सीखते हैं कि टेस्ट के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कब प्रिपेयर करना है और कैसे अटैम्प्ट करना है इवन। इसी तरह से होमवर्क में बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे का होमवर्क चेक भी करते हैं और दूसरे पीयर्स अपने पीयर्स का होमवर्क देखने के बाद अगर एक जो वीक बच्चा है वो अपनी करेक्शंस भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मैथ्स में एग्जांपल लेते हैं, अगर ग्रुप वर्क आपने होमवर्क दिया है ऑलरेडी और नेक्स्ट डे जो है वो आप उनको कोऑपरेटिव लर्निंग में इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ में उनको ग्रुप वर्क देते हैं कि वो एक दूसरे का होमवर्क जो है उसको देखें और चेक करें, और इस प्रोसेस में बच्चे जो हैं वो अगर उसको पता चलता है, किसी एक वीक बच्चे को पता चलता है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है, तो वो अपनी करेक्शंस कर सकता है, अपनी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकता है एंड वो दिस विल ऐड इनटू हिज लर्निंग। तो उससे उसकी लर्निंग जो है वो बेटर हो जाएगी, क्योंकि वो जब अपनी करेक्शंस को खुद ठीक करेगा तो उसकी जो लर्निंग है वो ज़्यादा कंफर्टेबली वो उसको लर्न कर सकेगा। इसी तरह से अगर उसके पास कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो फेस कर रहा है कोई डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस प्रपोज कर सकते हैं बच्चे मिलकर जब काम कर रहे होते हैं। सो वीक स्टूडेंट्स जो एकेडमिकली दो स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एकेडमिकली, तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेते हैं इन असेसमेंट्स एंड होमवर्क्स।
and all other things. When students work cooperatively in groups, the more knowledgeable students are able to help the less knowledgeable students understand new concepts. क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, वो वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और उनको कॉन्सेप्ट लर्निंग में काफ़ी उनको फैसिलिटेट करते हैं. High achieving students also benefit because they are verbalizing their ideas and actually teaching others. So peer tutoring हम already इस तीन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासरूम्स में, that peer tutoring is very effective strategy for concept learning and concept corrections. तो जब बच्चे जो हैं वो peer tutoring में इन्वॉल्व होते हैं, जो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको peer tutoring में इन्वॉल्व किया जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में, तो वो उसको जब बच्चों को समझा रहे होते हैं दूसरे वीक स्टूडेंट्स को, तो बेसिकली वो अपने कॉन्सेप्ट्स को वर्बलाइज कर रहे होते हैं. टीच करते हुए आपको बहुत सी अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है और फिर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकरेक्ट भी करते हैं, री इन्वेंट भी करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को समटाइम्स जब आप अगले बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं नेक्स्ट. तो इस तरह से जो है वो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक्टिविटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं. डिफरेंसेस इन लर्निंग एबिलिटीज़ आर वेल कैटर्ड इन कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम्स. जितनी भी ज़्यादा डिफरेंसेस होती हैं अगर क्लास के अंदर उन बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ अगर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज़ के बच्चों को भी एक ग्रुप के अंदर और ग्रुप वर्क के थ्रू एडजस्ट किया जा सकता है और वो एक दूसरे से सीखते हैं बच्चे. लर्निंग एबिलिटीज़ आपको पता है कि 3 तरह की होती हैं, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग स्टाइल्स हमारे पास मौजूद होते हैं. लर्निंग स्टाइल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, किनेस्थेटिक्स, ऑडिटरी एंड विजुअल लर्निंग स्टाइल्स. जो भी मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा होता है बाय द टीचर इन द क्लासरूम फॉर द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, ग्रुप्स में काम करवाने के लिए बच्चों को टीचर जो है वो मटेरियल प्रेजेंट करता है, तो वो ऑडिटरी भी होता है और विजुअल भी होता है. दोनों तरह से मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है. सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ऑडिटरी और वर्बल दोनों तरह के, ऑडिटरी और विजुअल, तो दोनों तरह में से जो भी बच्चा होगा वो और उसके लिए वो मटेरियल इक्वली बेनिफिशियल होगा. और जब वो बच्चे मिलकर काम करते हैं, उस मटेरियल को यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं, तो बेसिकली उनकी किनेस्थेटिक एबिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही होती हैं क्योंकि दे आर इन्वॉल्व इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. एंड व्हेन स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बाय यूजिंग द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द टीचर, एंड बेसिकली दे आर improving their auditory, visual and kinesthetic, all 3 abilities in these group work activities. Discussing issues within the groups further enhances verbal skills, and class presentation of group findings helps to reinforce visual and auditory skills. तो बच्चे जितना भी काम डिस्कस कर रहे होते हैं इश्यूज को, तो उनसे उनकी वर्बल स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं. So these were the different more benefits of the cooperative learning, and these benefits are more practical with reference to special education. Now we will discuss few drawbacks of cooperative learning method. These are loss of control, group work, and time requirements and difficult assessments. So now we will discuss all these 4 drawbacks of cooperative learning one by one. First one is loss of control. In order for cooperative learning to be utilized in the classroom, instructors must receive training to be proficient in implementing the techniques. प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए होनी चाहिए. ये नहीं हो सकता कि टीचर्स दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके एलिमेंट्स का नहीं पता, प्रोसीजर्स का नहीं पता, हाउ टू डेवलप ग्रुप्स, उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है. तो इस वजह से इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम होती है और फिर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती cooperative learning की. So maximum learning will only emerge if proper training is received by the instructor and then transferred to the students. क्योंकि जितना अच्छा डिज़ाइन करेंगे टीचर अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम को, उतना अच्छा उनको आउटपुट मिलेगा. और अगर पुअरली स्ट्रक्चर्ड करेंगे अपनी क्लास कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम को, तो उतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं गेन कर पाएंगे टीचर्स जितना अच्छा वो अज्यूम कर रहे हैं.
Instructors may resist using cooperative learning techniques in their classroom because they are afraid they may lose control of their teaching routine. बिकॉज टीचर जो है वो उनका एक ईज़ बन जाता है, ईजी वे में बन जाता है कि वो जो कॉमनली अपनी स्ट्रैटेजीज़ क्लासरूम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके यूज टू हो जाते हैं. सो जब उनकी टीचिंग रूटीन ख़राब होती है, क्योंकि आपको पता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड के थ्रू जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें फॉर्मल टीचिंग टीचर को नहीं करनी पड़ती, तो इस वजह से वो ये ख्याल करते हैं कि हमारा कंट्रोल क्लास के ऊपर नहीं है. एंड उसको फिर टीचर जो है उसको अपनी एक्सपर्टीज़ शो करने का मौका भी नहीं मिल रहा होता अपने सब्जेक्ट एरिया में. तो वो काफ़ी जो इस तरह की चीज़ें वो टीचर की बेस पर फिर अफेक्ट करती हैं क्लासरूम को. Giving up the opportunity to show off this expertise may deter instructors from using cooperative learning in their classrooms. तो जब वो अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं शो कर पा रहे होते तो इस वजह से वो कोऑपरेटिव लर्निंग को अवॉइड करना शुरू होते हैं और वो प्रेफर करते हैं दूसरे टीचिंग मेथड्स को जहाँ पर वो अपनी एक्सपर्टीज़ को शो कर पा रहे होते हैं. Since cooperative learning is centered on group work, students may be concerned that other members of their group are going to bring their grades down. तो हर बच्चा ये समझता है कि दूसरे बच्चे की डिस्टर्बेंस की वजह से शायद मेरे ग्रेड्स डाउन हो जाएंगे, दूसरा जो है वो मेरे काम को अफेक्ट करेगा. तो इस किस्म की जो थिंकिंग है वो अफेक्ट कर सकती है और नेगेटिवली आउटपुट लेकर आती है कोऑपरेटिव लर्निंग का. दिस इज़ स्पेशली ट्रू इफ़ स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड बाय मिक्स्ड एबिलिटी, कि जब हर तरह के एबिलिटी के ग्रुप्स बनाएंगे जिसमें हाई अचीवर्स भी हैं, लो अचीवर्स भी हैं, मिडल भी हैं, तो वो सब एक दूसरे से अफ्रेड होते हैं. स्पेशली जो हाई अचीवर्स होते हैं उनको ये होता है कि लो अचीवर्स मेरी ग्रेड्स को डाउन करेंगे, क्योंकि मैं अगर उनको पढ़ाऊँगा, पीयर ट्यूटरिंग में इन्वॉल्व हो जाऊँगा और अपने कॉन्सेप्ट्स उनको डिलीवर कर रहा तो उससे शायद मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी. रिक्वायरिंग हाई एबिलिटी स्टूडेंट्स टू गाइड लोअर एबिलिटी स्टूडेंट्स. सो यही वजह होती है कि वो बच्चे नहीं कर पा रहे होते लोअर एबिलिटी स्टूडेंट्स को गाइड प्रॉपरली. Time requirements. With cooperative learning, the textbook is used only as an instructional supplement. So it is necessary for instructors to create additional materials for the students. Creating these new materials can be very time consuming. एक तो जब वो टीचर ने न्यू मटेरियल्स को डिज़ाइन करना होता है ग्रुप एक्टिविटीज़ में देने के लिए, बच्चों को प्रेजेंट करने के लिए, तो वो प्रोसेस इटसेल्फ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है जब टीचर ने खुद से मटेरियल्स डेवलप करने हों. दूसरा ये कि टेक्स्ट बुक जो है उसकी डायरेक्ट टीचिंग नहीं हो रही होती, उसमें से कॉन्सेप्ट्स की बच्चे खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उनको ग्रुप वर्क के थ्रू वो काम कर रहे होते हैं. तो ग्रुप वर्क जो है वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी वजह से टीचर्स जो हैं वो फिर इस एंग्जाइटी में होते हैं कि मे बी उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है इन एक्टिविटीज़ के अंदर, और जो अपना जो उनका सिलेबस है शायद उसको कवर नहीं कर पाएंगे इन द गिवन टाइम. Since students have to generate an answer or information within their group, work time may take longer than the traditional lecture. Because of this additional time, instructors may be unable to cover the same amount of curriculum as before when they use teacher-directed classroom discussions. We have already discussed these points. Another drawback of cooperative learning is that it involves difficult assessments instead of the common tools used for the assessments. Since students are working together on a group assignment, it is difficult to assess students with a paper and pencil test. Instructors will have to find another way to assess student work and progress. Since students are used to concrete assessments, it may be difficult for students to adjust to authentic assessments. तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो बच्चे भी इसमें अनकंफर्टेबल होते हैं कि हमें कैसे असेस किया जा रहा है, हमारी मार्किंग कैसे हो रही है, और टीचर के लिए भी इटसेल्फ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि पेपर पेंसिल टेस्ट की बजाय आपने इनको इनफॉर्मल तरीक़ों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, लाइक ऑब्ज़र्वेशंस के थ्रू हम ग्रुप वर्क को असेस कर रहे होते हैं. तो उसमें उसकी वजह से टीचर्स को भी जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं असेसमेंट के लिए. Now we will discuss elements of cooperative learning. These are 5 elements of cooperative learning. First one is positive interdependence. Second is face-to-face interaction. Third one is individual and group accountability.
fourth is social skills, and fifth one is group processing. Now we will discuss each element in detail. First one is positive interdependence. Positive interdependence is the first element of cooperative learning classroom, and basically it focuses on the dependence of students on each other. Teachers must give a clear task and a group goal so students believe they sink or swim together. So ये जो फीलिंग है सिंकिंग एंड स्विमिंग टुगेदर की, ये इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्रुप में इनकलकेट करे इस फीलिंग को. पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट्स व्हेन ग्रुप मेंबर्स परसीव दैट one cannot succeed unless everyone succeeds. If one fails, all fail. तो इस तरह की फीलिंग्स जो है वो बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदरवाइज़ जो है वो हर बच्चा, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, कि वो ये सोच रहा होगा कि इसकी वजह से मेरे ग्रेड्स डाउन हो जाएंगे दूसरे ग्रुप वर्क की वजह से. तो ये फीलिंग्स डेवलप करना बच्चों में टीचर का काम होता है कि ताकि वो ये फील करें कि अगर हम में से एक भी फेल हो गया तो हम सारे फेल हो जाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. एंड ग्रुप मेंबर्स रियलाइज देयरफॉर दैट ईच पर्सन's efforts benefit not only him or herself but all other group members as well. Next element of cooperative learning is face-to-face interactions, and promotive interactions occur. These face-to-face interactions are also called as promotive interactions, and these occur when members share resources and help, support, encourage and praise each other's efforts to learn. Cooperative learning groups are both an academic support system. Every student has someone who is committed to helping him or her learn, and a personal support system. Every student has someone who is committed to him or her as a person. सो इसमें ग्रुप वर्क में जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो हर एक जो मेंबर है ग्रुप का, उसको ये दो तरह के सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होते हैं हर बच्चे को. एक तो उसको ओवरऑल ग्रुप का सपोर्ट सिस्टम होता है, एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें उसकी लर्निंग को बच्चे दूसरे हेल्प कर रहे होते हैं और उसकी लर्निंग को बेटर कर रहे होते हैं. और दूसरा एक उसका एज अ पर्सन भी सपोर्ट सिस्टम होता है कि बाकी सारे बच्चे उसे सिर्फ उसकी लर्निंग के लिए प्रमोट नहीं कर रहे होते या सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उस बच्चे को एज अ पर्सन भी लिया जा रहा होता है और उसको एज अ पर्सन भी सपोर्ट किया जा रहा होता है. सो जो इंटरेक्शंस हैं वो हेल्दी इंटरेक्शंस होते हैं. कोऑपरेटिव लर्निंग में एक दूसरे के साथ बच्चों के रिलेशनशिप्स ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेवलप होते हैं और इम्प्रूव करते हैं बच्चे अपने रिलेशनशिप्स को, और एक दूसरे की हेल्प के थ्रू वो सीखते हैं. नेक्स्ट जो एलिमेंट है दैट इज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी. द ग्रुप मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर अचीविंग इट्स गोल्स. ईच मेंबर मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग हिज और हर शेयर ऑफ द वर्क. और ये तभी हो सकता है, टीचर उसको तभी असेस कर सकता है जब टीचर ने प्रॉपरली गोल्स और रोल्स को असाइन किया होगा. जब जितना अच्छा और क्लियरली आपने रोल्स को असाइन किया होगा ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो उतना अच्छा वो आपस में काम करने के बाद उसको लेकर आएंगे आपके सामने. द ग्रुप हैज़ टू बी क्लियर अबाउट इट्स गोल्स एंड बी एबल टू मैयर. दो चीज़ों को मैयर करने के काबिल होना चाहिए ग्रुप को: इट्स प्रोग्रेस इन अचीविंग देम एंड द इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स. तो दोनों चीज़ों का बच्चे को, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ओवरऑल एज अ ग्रुप वो किस तरह से अचीव कर रहे हैं. अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहिए उन्हें साथ साथ, और उसके साथ ही उन्हें अब हर एक इंडिविजुअल एफर्ट का भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर कितनी एफर्ट्स कर रहा है और उसको हमने कंबाइन कैसे करना है. तो इस तरह से ये ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जहाँ पर, तो वो काम उतना अच्छा नहीं हो रहा होता. जब तक इंडिविजुअल लेवल पर हर बच्चे को सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आप डेवलप नहीं करेंगे कि वो अकाउंटेबल है, असेसमेंट उसकी की जाएगी, उससे पूछा जाएगा कि उसने क्या लर्न किया है और क्या कंट्रीब्यूट किया है उस गोल को अचीव करने में, तो जब तक वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझेगा तब तक वो अपनी प्रोग्रेस प्रॉपरली इनपुट नहीं दे पाएगा. Next is element of cooperative learning is social skills, and in cooperative learning groups students are required to learn academic subject matter, that is task work, and also to learn the interpersonal and small group skills required to function as part ऑफ अ ग्रुप. तो टीम वर्क भी बच्चे सीख रहे होते हैं, साथ साथ अपने सब्जेक्ट मैटर को भी फोकस कर रहे होते हैं, उसे भी याद कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं एक दूसरे से. कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ इनहेरेंटली more complex than competitive and or individualistic learning because
स्टूडेंट्स हैव टू इंगेज साइमल्टेनियसली इन टास्क वर्क एंड टीम वर्क। तो दोनों चीज़ें चूँकि साथ साथ चल रही होती हैं, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी बच्चे काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और साथ साथ उनकी जो टीम वर्क की एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप हो रही होती हैं और इन्हेंस हो रही होती हैं। सो ग्रुप मेंबर्स मस्ट नो हाउ टू प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप, decision making, trust building, communication and conflict management, and be motivated to use the prerequisite skills. So ये जो सारी prerequisite skills होती हैं जिनको ग्रुप वर्क में काम करने से पहले बच्चों को आना चाहिए, और उनके इन चीज़ों के लिए उसके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए टीचर्स की तरफ से, ताकि जब वो ग्रुप के अंदर काम करे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सके। सो आपको अपने ग्रुप के जो आपने बनाए हैं उसमें हर बच्चे को लीडरशिप सिखानी है, क्योंकि और जो लीडरशिप रोल होता है वो टर्न बाय टर्न आप उसको स्विच करते रहते हैं, एक ही बच्चे को लीडरशिप का रोल नहीं दिया जाता कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो लीडरशिप एबिलिटीज़ बच्चे की जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं, डिसीजन मेकिंग उन बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग वो करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कम्युनिकेशन उनकी इंप्रूव होती है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं तो उनको मैनेज करने की जो एबिलिटीज़ हैं उनको बच्चे इंप्रूव कर रहे होते हैं, और इसी तरह से उनकी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होती है। तो ये सारी जो प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ग्रुप वर्क में काम करने के लिए इन सारी स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Group processing exists when group members discuss how well they are achieving their goals and maintaining effective working relationships. Groups need to describe what member actions are helpful and unhelpful and make decisions about what behaviors to continue or change. Continuous improvement of the process of learning results from the careful analysis of how members are working together. So group processing के ऊपर बच्चे जो हैं उनकी बड़ी थिंकिंग चल रही होती है साथ साथ, कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, किसको कहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर को किसको ठीक करना है, किसको जो है वो किसी एक बिहेवियर को ड्रॉप करना पड़ेगा और न्यू बिहेवियर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो ये जो एनालिसिस है ग्रुप प्रोसेसिंग का ये कॉन्टीन्यूअस होता है और ये साथ साथ चलता है। So this was all about cooperative learning method. We have discussed in 2 different lectures all the details of cooperative learning. Now I have 2 assignments for you people. Group 1, your class is divided in 2 groups, and group 1 will prepare strategies of cooperative learning, and group 2 will prepare how to design classroom cooperative learning groups. ये असाइनमेंट्स जो हैं ये गूगल क्लासरूम में इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल होगी, एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्क ऑन दीज 2 असाइनमेंट्स। थैंक यू।